Student, good morning. I am Bhise sir. I am your English and ENV teachers. I teach you English and ENV in regular periods. Now today we take the English grammar. Okay. Now do you know the grammar is the base of the every language. तुम्हें ये पता है कि जो ग्रामर होता है ये हर एक लैंग्वेज का बेस होता है। हर लैंग्वेज का ये बेस होता है और ग्रामर से ही हर लैंग्वेज बनती है। और नियर अबाउट हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये तीनों लैंग्वेज का ग्रामर नियर अबाउट सेम होता है। ओनली द डिफरेंट फॉर in their language. Okay, now you learns in the KG1, KG2 the English language. In English language start or every language start with a letter. Now in English language have a 26 letter A to Z. Now in 26 letters the 5 are the vowels and the remaining 21s are the consonants. Okay, you learn this in first standard, second standard, third standard. Last year you see the part of speech. Your teacher taught you last year the part of speech. Now do you know when a number of letters come together make a word and the number of word come together make a sentence. Now in the sentence then has a number of word. Now the numbers of word depends on the length of the sentence. Okay, now in the grammar, in English grammar, each sentence has the separate name. Sorry, each word has the separate name and this name is called the part of speech. Part of speech. The part of speech are the nine. One is the noun, second is the pronoun, third is the adjective, fourth is the verb, fifth is the adverb, sixth is the articles, seventh is the prepositions, eight is the conjunctions and interrogations, nine is the interrogations. Okay, now today we see the noun. Today we see the noun. You open your notebook or if you bring the workbook, now open your page number 28. Open your page number 28. Otherwise you open your notebook. And now the first we see the noun. What is the noun? The means of the noun. नाउन यानी क्या, हमें पहले नाउन की डेफिनेशन देखना है. द नाउन इज द नेम ऑफ. द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, एनिमल, बर्ड्स, थिंग, प्लेसेस एंड द इमेजिनरी थिंग. दिस नेम इज कॉल्ड द नाउन. ये सभी के नामों को हम नाउन कहते हैं. ओके, नाउ द 5 काइंड्स ऑफ द नाउन. नाउन के 5 तरह के प्रकार होते हैं. वन इज द प्रॉपर नाउन, सेकंड इज द कॉमन नाउन, थर्ड इज द कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज द मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज द abstract noun. Okay, now in our first day we see
the proper noun and the common noun. Okay, wait a minute. Okay, sorry, sorry for disturbs. Okay, now you see on your screen the noun, the proper and common noun. Today we see the common and proper noun. Okay, what is mean by the proper noun? The proper noun are the special name that we use for a person's place, animal, things, festival, day, month, rivers, mountains, countries, etc. Common noun means, second is the common noun. Common nouns are the common names that we give the people, place, animal or things. In common nouns, one kinds of the peoples, one kinds of the things, one kinds of the animals, one kinds of the places, etc. कॉमन नाउन के अंदर एक ही तरह के लोग होते हैं, एक ही तरह के एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और उनको दिया हुआ जो नाम होता है वो सभी को एक ही नाम से हम बुलाते हैं, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. और प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपरली उस चीज़ को, उस पीपल्स को, उस एनिमल्स को, उस थिंग्स को दिया गया नाम जो होता है, वो उस प्लेस को दिया गया प्रॉपरली जो नाउन्स होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके, आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की डेफिनेशन समझ में आई होगी. अब देखिए, हमें यहाँ पर ये हम आपको राइट डाउन करना है. ठीक है, ये डेफिनेशन पहले राइट डाउन करना है, पहले हेडिंग डालना है द नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. आफ्टर देन उसके बाद में तुमको नोटबुक में ये सब राइट डाउन करना है. अगर तुम्हारे पास वर्कबुक अगर तुमने अवेलेबल कर ली होगी तो ये वर्कबुक में फिलअप करना है. ओके, और वन टाइम नोटबुक में राइट डाउन करना है. और जिनके पास वर्कबुक नहीं है उन्होंने ये सब के सब नोटबुक में लिखना है. पेज नंबर 28 है वर्कबुक का. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दिए हैं, जिसमें हमको क्या करना है, उनकी मैच द पेयर करना है. अब सिंपल थिंग है, अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन दिया है, उस प्लेस को, उस पर्सन्स को दिया हुआ यहाँ पर नाउन है. जैसे फॉर द न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द प्लेस और सिटी नेम, सेटलमेंट नेम. ओके, मीन्स न्यू दिल्ली इज द सिटी. उसका कॉमन नाउन क्या होगा? अगर सिटी है तो ऐसे न्यू दिल्ली जैसे जितने भी सेटलमेंट्स हैं ऑल वर्ल्ड में, उन सभी सेटलमेंट को हम सिटी कहते हैं. ठीक है, और उनका प्रॉपर नाउन होता है न्यू दिल्ली और कॉमन नाउन है सिटी. सेकंड इज द ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया, अब हमारे यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स है. अब ये कॉन्टिनेंट्स कॉमन नाम है, ऐसे जितने भी जो प्लेस पीस ऑफ द लैंड्स है, बिग पीस ऑफ द लैंड्स, और उनको एक इमेजिनरी लाइन से कट किया गया है या कुछ कुछ सी की वजह से भी एक दूसरे से दूर हुए हैं, और वो जो पीस ऑफ द लैंड जो है, उस लैंड को हमने कॉन्टिनेंट से नाम दिया है. आवर कॉन्टिनेंट्स इज द आशिया कॉन्टिनेंट्स. आवर कंट्री इंडिया इज इन द आशिया कॉन्टिनेंट्स. तुम्हें ये पता होगा कि पूरे अर्थ पे ऐसे बड़े बड़े भूखंड निर्माण हुए हैं, और कुछ भूखंड कंटिन्यू होने के बाद में वहाँ पर हमने इमेजिनरी लाइन डाली है. यहाँ किसी नेचुरल फ्लो की वजह से वो दूसरे एक भूभाग से अलग हुआ है. ऐसे बड़े बड़े भूभाग को हमने कॉन्टिनेंट्स या खंड ऐसा नाम दिया है. और उसमें हमारा जो देश है भारत, यह आशिया कॉन्टिनेंट्स में आता है, और ऑस्ट्रेलिया ये एक कॉन्टिनेंट्स है, और उसका प्रॉपर कॉमन नाउन होगा कॉन्टिनेंट और प्रॉपर नाउन होगा ऑस्ट्रेलिया.
ठीक है. Sachin Tendulkar is the person's name. Okay, Sachin Tendulkar is the person's name. But यहाँ से तो यहाँ तक हमको ये दिया है, मैच द पेयर करना है. इधर प्रॉपर नाउन दिए है और इधर कॉमन नाउन दिए है. देखो 28 से 29 पेज पर भी कुछ पार्ट गया है. अब यहाँ पर सचिन तेंदुलकर रिलेटेड टू द क्रिकेट, और जो भी क्रिकेट खेलता है वो सभी को हम कहते हैं क्रिकेटर. और इस तरह सचिन तेंदुलकर ये प्रॉपर नाउन हुआ, तो क्रिकेटर ये कॉमन नाउन हुआ है. तो हमको क्रिकेटर से वो मैच द पेयर करनी है. उसके बाद में है पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ द कंट्री नेम. ओके, पाकिस्तान को कंट्री से मैच करना है. लता मंगेशकर इज द ऑल्सो पर्सन्स नेम, प्रॉपर नाउन, बट ही इज़ द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड. वो बेस्ट सिंगर है, और जो भी गाना गाता है उस हर पर्सन्स को हम सिंगर कहते हैं, और सिंगर इज़ द कॉमन नाउन, और लता मंगेशकर इज़ द प्रॉपर नाउन. Christmas. Now, Christmas is the festival name. The number of the festival we celebrate: Holi, Diwali, Dasera, Pongal. So among all these festivals, the Christmas is the one of the festivals. The name, proper name of the festival is the Christmas. Christmas is the festival. Common name is the festival. Okay. नेक्स्ट, तारे ज़मी पर. तारे ज़मी पर इज़ द प्रॉपर नाउन, और वो एक फिल्म का नाम है. ऐसी जो भी पिक्चर बनती है उसे हम फिल्म कहते हैं, मूवी कहते हैं, और उस मूवी का नाम है तारे ज़मी पर. फिल्म इज़ द कॉमन नाउन एंड द तारे ज़मी पर इज़ द प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट, हैरी पॉटर्स and the goblet of fire. Harry Potter and Goblet of Fire, it is the book name. Numbers of the book available in the words. Now in the India, Ramayana, Mahabharata, Shakuntala, Chhawa, the numbers of book available, but each book has a proper noun. Like this, the Harry Potter and the Globules of the Fire is the book name. The common noun is the book and proper noun is the Harry Potters. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, अब उसके बाद में हमको यहाँ पर गिव अ प्रॉपर नाउन फॉर अ गिवन कॉमन नाउन एंड सिलेक्ट देम फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पर हमको हेल्प कॉलम दिया है. उस हेल्प कॉलम में हमको बताया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाईचुंग भूतिया, एवरेस्ट, सलमान खान. अब ये प्रॉपर नाउन्स दिए हैं, और यहाँ पर नीचे हमको 1 to 5 में कॉमन नाउन्स दिए हैं. तो इसमें से कौन सा नाम प्रॉपर है उनके आगे, जैसे फॉर 1 में एग्जाम्पल दिया है अ रिवर. River, the Ganga is the river's name. The Ganga is the river's name. There, that is the Ganga is the proper noun and river is the common noun. The flowings of the water is called the river, and the numbers of river available in the word. The Ganga is the proper noun and river, Ganga is the river, therefore the common noun is the rivers. After that, second is the footballer. Now the persons who play the football is called the footballers. Each players is called the footballers. The who is play the football. जो भी प्लेयर फुटबॉल खेलता है उस हर प्लेयर्स को फुटबॉलर कहा जाता है, और इसलिए वो एक कॉमन नाउन्स हो गया फुटबॉलर्स. और बाईचुंग भूतिया उसमें एक प्रॉपर प्लेयर्स का नेम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया बाईचुंग भूतिया. ओके. नेक्स्ट, न्यूज़पेपर. द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर इंडिया.
तरुण भारत, देशोन्नति, लोकमत, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली, मराठा, केसरी, सामना, बट इट इज़ द प्रॉपर नाउन, दैट इज़ द प्रॉपर नाउन्स ऑफ द न्यूज़पेपर, एंड ये सभी को हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, और इसीलिए उनका कॉमन नाउन हो गया न्यूज़पेपर, और द टाइम्स ऑफ इंडिया ये उस न्यूज़पेपर का प्रॉपर नाउन हुआ। उसके बाद में एक्टर, द पर्सन्स हु एक्ट इन द ड्रामा, इन द फिल्म्स, इट्स कॉल्ड द एक्टर्स। ओके, नाउ द Salman Khan is the proper nouns of the one actors, and the persons who acts in the film, movies and dramas is called the actors। जो भी पर्सन्स फिल्म में, मूवी में, ड्रामा में, यानी नाटक में या टीवी पर जो एक्टिंग करते हैं उनको हम एक्टर बोलते हैं सभी को, और उसी में से एक प्रॉपर नाउन है सलमान खान, और ऐसे एक्टिंग करने वालों को हम कहते हैं एक्टर। ओके, एक्टर इज द कॉमन नाउन। माउंटेन, नंबर्स ऑफ द माउंटेन अवेलेबल ऑन द अर्थ, among them one is the Everest mountain। Everest is the proper name of the mountain, and like the piece of land is called the mountain। और वो जो ज़मीन का टुकड़ा होता है जो बहुत ऊंचाई पर होता है, ऊंचाई तक होता है, उसे हम माउंटेन कहते हैं। और ऐसे बहुत से ज़मीन के टुकड़े हमारे अर्थ पर अवेलेबल है, उसमें से एक प्रॉपर नाउन है एवरेस्ट। एक माउंटेन का नाम है एवरेस्ट, और वो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके बॉयज, इतना आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये आपके समझ में आया होगा। आज हम यहीं पर रुकते हैं। आपको ये सब नोटबुक में नोट डाउन करना है, और जिनके पास वर्कबुक अवेलेबल हो चुकी है उन्होंने ये वर्कबुक में सॉल्व करके आफ्टर देन 1 टाइम्स नोटबुक में राइट डाउन करना है, और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की डेफिनेशंस अच्छे से लर्न करनी है। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ये सभी वीडियो बच्चों से अच्छी तरह करवा लीजिए, ये स्टडी अच्छी तरह करवा लीजिए। और ओके।